चलो, तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियो देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है। पढ़ लिया था। सभी को विजिबल है ये? हाँ दिखा जी सर। This animation illustrates the human respiratory system in an unprecedented way. Let's do this fantastic journey together. Not only oxygen, which is important for us, is part of the air we breathe. Water also enters our respiratory system, as well as other gases like krypton, or even radioactive radon. In addition, small and large particles are part of the air, which shouldn't enter our lower respiratory tract. For this reason, the upper airways provide certain protective mechanisms. Large dirt particles or insects are stopped in the nasal cavity by our nasal hair. Small particles are trapped by the nasal mucosa. Ciliated cells are located on the nasal mucosa. These cilia move in a wave-like manner. This allows the cilia to push the nasal mucus produced by the goblet cells towards the pharynx. Consequently, small particles that have been caught by the nasal mucus are swallowed. This process is called mucociliary clearance. Furthermore, the upper airways such as the nasal and oral cavities warm and moisten inspired air. During the act of swallowing, the epiglottis, which is connected to the tongue, ensures that no food or liquid can enter the lower respiratory tract. To do this, the epiglottis closes the larynx during swallowing, so that the bolus slides into the esophagus. The trachea, right below the larynx, is surrounded by incomplete rings of hyaline cartilage for reinforcement. Near the heart, the trachea branches into two main bronchi. The main bronchi lead to the left and right lungs. The left lung has only two lobes, upper and lower, whereas the right lung has three lobes. The centrally located heart pumps deoxygenated blood to the lungs through the pulmonary arteries. Oxygenated blood returns to the heart through the pulmonary veins and eventually to all organs. The main bronchi form the trunks for the bronchial tree. Like the branches of a tree, the tubular system of the lungs starts here, into finer and finer branches. The right lung has 3 lobes with 10 lung segments. Each lung segment receives its own air and blood supply. At the ends of the bronchial tree are tiny air sacs called alveoli. It is estimated that humans have 300 to 400 million alveoli. Large branches with cartilage are called bronchi. Thin branches at the end of a bronchial tree are called bronchioles. Instead of cartilage, bronchioles are surrounded by elastic fibers and smooth muscle. The exchange of gases occurs with the help of the alveoli. Individual alveoli are found on the walls of the bronchioli respiratory.
Several alveoli are grouped together at the end of a bronchiole respiratory to form an alveolar sac, which is supplied by one alveolar duct. Alveoli are approximately 50 micrometers in size. They enlarge considerably during inhalation. Alveoli are largely composed of thin cells called type 1 pneumocytes. These cells are extremely thin, allowing oxygen and carbon dioxide to diffuse. Air, with the required oxygen, enters the alveoli via the alveolar duct. This is where gas exchange begins. All alveoli are covered with a network of thin blood vessels. Deoxygenated blood can thus be enriched with oxygen and at the same time release unneeded carbon dioxide into the alveoli. This is done with the help of red blood cells, the erythrocytes. Erythrocytes move through the blood vessels and take up the oxygen, shown here in blue. Iron, Fe, in these blood cells is responsible for binding the oxygen. An iron ion can bind to one oxygen molecule so that the oxygen can be transported. At the same time, the carbon dioxide in the bloodstream and emitted by red blood cells diffuses into the alveoli. This is made possible by diffusion. In the alveoli, we see a lot of oxygen, whereas in the blood vessels, there is a lot of carbon dioxide. This difference in concentration is eventually balanced by diffusion. This is how the differences in concentration are equalized. Let's now look at how air and therefore oxygen is transported into our lungs. Our body has various muscles that inflate and deflate the lungs. The muscles of the neck are responsible for fixing and raising the sternum and upper ribs, and certain muscles between the ribs raise and lower all the other ribs. However, the most important muscle of respiration is not found in the neck or chest area, but near the abdomen. The thoracic diaphragm, or simply diaphragm, is responsible for most of the work of breathing. First, let's take a closer look at chest breathing through the neck and rib muscles. Due to their arrangement and the contraction of the rib muscles, the ribs rotate outward. This causes an increase in volume, particularly in the lower regions, that is, the caudal ribs. The rib movement can be imagined similar to the handle of a bucket. The handle is shown here in red. Therefore, it is called bucket handle motion. The increase in chest volume occurs not only laterally, but also sagittally. The sternum rotates as well, as seen here. This is called pump handle motion, because the movement of the sternum can be thought of as the motion of a pump handle. Thus, one can easily visualize the increase and decrease in volume of the lungs. When the lungs inflate, a negative pressure is created in the lungs and we breathe in. When the lungs deflate, positive pressure is created and air is forced out of our lungs. We breathe out. Inhalation, exhalation. Inhalation, exhalation. Here we can see the inhalation and exhalation process from below.
As noted earlier, in addition to chest breathing, we can use diaphragmatic breathing. It can be performed separately or in cooperation with chest breathing. Diaphragmatic breathing is the natural way of breathing at rest. During diaphragmatic breathing, the diaphragm rises and lowers. When it rises, we exhale. When it lowers, we breathe in. In order for the lungs to inflate and deflate, the body has a pleura. The pleura serves as a lube outside of the lungs, to allow for up and down motions against the chest wall. For this reason, the inner pleura covers the lungs. The outer pleura lines the rib cage and diaphragm. This allows the inner pleura to shift against the outer pleura. Between these two layers is the pleural cavity, shown here in yellow. Clear to everyone? Yes or no? How it's a work? जी सर. Okay, good. इसमें आपको पूरा दिखाएगा कि किस तरीके से मूवमेंट होता है, रिब केज की मूवमेंट किस तरीके से होती है और डायफ्रामेटिक मूवमेंट किस तरीके से होता है और लंग्स की मूवमेंट किस तरीके से होती है. क्लियर है ना? It's a visual to you all. Anatomy and physiology of digestive system. Okay. विजिबल है सभी को? यस या नो? नहीं सर, स्टिल नहीं आ रही है. स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं सर. वेट. ओके. जस्ट अभी ठीक है? हाँ जी, अभी आ रही है. जी. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम मींस पाचन तंत्र. ठीक है. पाचन तंत्र का हम देखेंगे किस तरीके से क्या लोकेशन होता है, कौन से ऑर्गन्स होते हैं और कौन सी क्रियाएं हमारी पाचन की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, पाचन तंत्र में कौन कौन सी क्रियाएं किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं. ठीक है. अगर हम बात करें व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब दैट बिगिंस एट द माउथ एंड इन एट द एनस. कहां से शुरू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? पाचन तंत्र आपके माउथ से शुरू होता है, मुख से, और खत्म कहां होता है? एनस के ऊपर. एनस पे ये खत्म होता है. मेजरिंग अबाउट 30 फीट लॉन्ग. कितनी लंबाई होती है इसकी? 30 फीट इन एवरेज एडल्ट. जो एक एडल्ट होता है उसमें. इट इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई ट्रैक भी कहा जाता है. क्लियर है? जीआई ट्रैक कहां से कहां तक है? माउथ से लेके एनस तक. क्लियर? इट हैज 3 फंक्शंस. इसके कितने काम है? 3 काम है. कौन कौन से? द डाइजेशन ऑफ फूड, क्लियर, into nutrients and the absorption of nutrients into the blood stream. किसमें? फूड में से न्यूट्रिशन को बाहर निकालना. एब्जॉर्प्शन किसका करना? न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करना इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में. थर्ड काम इसका क्या है? तीसरा काम क्या है? एंड द एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. जो सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, उसको शरीर से बाहर निकालना. क्लियर है? अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर देखें तो सबसे ऊपर क्या है? माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स.
एलिमेंट्री कैनल कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। तो माउथ में सबसे पहले माउथ, एंड वहीं पे होते हैं, माउथ में ही वो क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। जब उससे नीचे आएंगे तो एसोफेगस। एसोफेगस क्या है? फूड पाइप कहते हैं, जिसको आहार नाल भी कहते हैं। उसके बाद लीवर, जिसको हिंदी में गुर्दा कहा जाता है। स्टमक, आमाशय। गॉल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, फॉर द डाइजेशन। उसके बाद ड्यूडेनम होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद इलियम, सेकम, जेजुनम is the part of ileum, jejunum, right, and duodenum, this is the part of small intestine. उसके बाद बिल्कुल नीचे की तरफ अपेंडिक्स, सिग्मॉइड क्लोन, जो कि नीचे की तरफ होता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास, रेक्टम, एंड लास्ट में दैट इज एनस। अब हम एक एक करके सभी को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर ऑफ ग्लैंड ओपन इनटू द ओरल कैविटी। 3 प्रकार के जो ग्लैंड होते हैं वो कहाँ होते हैं? ओरल कैविटी में, माउथ में। क्लियर? प्रोड्यूसिंग सलाइवा, जिसका काम क्या होता है? सलाइवा को क्या करना? प्रोड्यूस करना, निकालना। द पैरोटिड, एक तो पैरोटिड ग्लैंड होता है, सेकंड सबलिंगुअल ग्लैंड, एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। क्लियर? पैराटॉइड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। इसको याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि माउथ में कितने ग्लैंड होते हैं, या तो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं जो माउथ में होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पैराटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। क्लियर? The sensory organs such as the nose and eyes send a message to the brain, right? जो eyes होते हैं, nose होते हैं, वो किसको भेजते हैं मैसेज? ब्रेन को। एंड द ब्रेन सेंड्स द मैसेज टू द सलाइवरी ग्लैंड। और ब्रेन किसको मैसेज भेजता है? ब्रेन सेंड्स द मैसेज टू सलाइवरी ग्लैंड्स एंड दे secrete the chemicals to begin the digestive process. और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? लार ग्रंथियां। सलाइवरी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? हिंदी में अगर आप देखेंगे तो लार ग्रंथियां होती है, जिन्हें सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है। ये क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स निकालते हैं, ठीक है, रसायन निकालते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेशन प्रोसेस को, पाचन क्रिया को प्रारंभ करते हैं। क्लियर हुआ? ओम जी, ये कौन सी बताई लारवृत्ति ये आपने? हाँ, ये 3 प्रकार के लार ग्रंथियां 3 प्रकार की हैं। पैराटाइड ग्लैंड है एक, पैराटाइड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ओम जी, ओके ओके ओम। ठीक है, ओके। अब हम माउथ देखते हैं। द टंग इज अ मसल्स कवर्ड विद अ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारा जीभ होता है, जीवा, वो किससे कवर्ड होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से। इट हैज अ रियर पोर्शन कॉल्ड द रूट। इसके जो पोस्टर पोर्शंस होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो रूट होता है, एक टिप होता है, और एक सेंट्रल बॉडी होता है, राइट। एक सबसे अंत में, एक मिड में, और एक सबसे टॉप पे। इट इज कवर्ड विद अ टेस्ट वर्ड। किससे कवर होता है ये? टेस्ट वर्ड्स होते हैं इसमें, राइट। टेस्ट मीन्स जो, जिससे आप
पता करते हैं कि किस प्रकार का टेस्ट है। एंड रेज्ड एलिवेशंस कॉल्ड पेपिले, राइट। जो इसमें बर्ड्स एंड रेज्ड एलिवेशंस जो होती हैं, राइट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट वर्ड दिखाया गया है, टंग का बैक पार्ट, ठीक है। एंड द टेस्ट वर्ड का काम क्या होता है, जो चखने के लिए होती है, जिससे आप पता करते हैं कि स्वीट है, सोर है, सॉल्टी है, विटर है, राइट, और उनमनी एंड और सेवोर, किस तरीके की जो टेस्ट है उसका पता आपको कैसे लगता है, ये जो टेस्ट वर्ड होती है आपके जीभ में, उससे आपको ये पता चलता है। द माउथ एंड टीथ, द टीथ आर यूज्ड फॉर द च्यूइंग द फूड, जो टीथ है वो किसके लिए यूज होता है, फूड को चबाने के लिए। मैनिफेस्टेशन, उसको टुकड़ों में तोड़ने के लिए। एंड द फूड इज ब्रोकन अपार्ट एंड मिक्स विद द सलाइवा, जो आपका भोजन होता है वो टुकड़ों में टूट के किसके साथ मिक्स हो जाता है, लार के साथ, सलाइवा के साथ, टू फॉर्म अ बोलस, जो किस फॉर्म में हो जाता है, बोलस के फॉर्म में, रेडी टू बी स्वैलोड। जो मुख से नीचे आता है फूड वो किस फॉर्म में आता है, बोलस। बोलस के फॉर्म में आता है। क्लियर हुआ। जो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शंस मूव द बोलस थ्रू द फेरेनेक्स, जो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है कहां पे, इन द एसोफेगस, ठीक है। वो जो मस्कुलर, जब आप ऊपर देखेंगे, जब माउथ से एंटर करता है तो कुछ मस्कुलर जो थी, लाइक जीभ है, उसके नीचे आएंगे तो मस्कुलर शेप्स हैं कुछ, वो क्या करते हैं, बोलस को किसके थ्रू नीचे ले जाते हैं, थ्रू द फेरेनेक्स। फेरेनेक्स क्या है, सॉफ्ट प्लेट एट द बैक ऑफ द माउथ, ये एक सॉफ्ट प्लेट है, क्लियर है, माउथ के जस्ट पीछे, एंड इनटू द एसोफेगस while blocking the opening to the larynx and preventing the food from earning in the airway। ये क्या करते हैं, फेरेनेक्स डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है, जो इपिग्लॉटिस होती है मेन, and into the esophagus while blocking the opening to the larynx and preventing the food। जो प्लेट होती है वो क्या करता है, that is called epiglottis, उसको क्या कहते हैं, epiglottis। क्लियर हुआ। जो लैरिंक्स को बंद कर देता है और फूड को कहां भेजता है, फूड पाइप में। एसोफेगस में। न, अगर बंद नहीं होगा तो वो फूड कहां जा सकता है, ट्रैकिया। पाइप में। एयर पाइप में, लैरिंक्स। ट्रैकिया में बाद में जाएगा, पहले जाएगा, ट्रैकिया में प्रॉपर नहीं जा पाता है वो, लैरिंक्स में जैसे ही एंटर करता है उसको ऊपर फेंक दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपका ध्यान कहीं और हो और आप पानी पी रहे होते हैं, है ना, कई बार पानी क्या होता है, एकदम से छींक आती है और पानी नॉस्ट्रल से बाहर आ जाता है, क्यों आता है, क्योंकि आपका जो ध्यान था कहीं और था, जिसके वजह से आपने जब पानी पिया तो इपिग्लॉटिस ने एयर पाइप को बंद नहीं किया। क्लियर है ना। और जैसे ही एयर पाइप बंद नहीं हुआ तो जो आपने पानी पिया वो कहां गया, एयर पाइप में, लैरिंक्स में। और जैसे ही एयर में गया वैसे ही आपका दिमाग कॉन्शियस हो जाता है, ब्रेन कॉन्शियस हो जाता है, और क्या होता है, लैरिंक्स उसको बाहर की तरफ फेंक देता है। क्लियर हुआ। तो वो आपके नॉस्ट्रल से बाहर आ जाता है, कई बार ऐसा होता है ना, कई बार फूड भी नॉस्ट्रल से बाहर आ जाता है, कुछ पार्टिकल्स ऑफ फूड, जी सर। वो इसी रीजन से होता है, क्योंकि लैरिंक्स में सिर्फ एयर ही जा सकता है। अगर फूड एंटर करेगा ना लैरिंक्स में तो वो उसको बाहर फेंक देगा, वो अलाउ नहीं करेगा उसको अंदर जाने के लिए। क्लियर। अब हम देखते हैं द एसोफेगस। द फूड इज मूव्ड डाउन द एसोफेगस टुवर्ड द स्टमक बाय वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन कॉल्ड
पेरिस्टेलाइसिस एक वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है किसमें? एसोफेगस में। एसोफेगस। एसोफेगस क्या होता है? एक तरफ से खुलता है, एक तरफ से बंद होता है, एक तरफ से खुलता है, एक तरफ से बंद होता है, राइट? जगह जगह पे क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, जिससे क्या होता है? फूड धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। इसको क्या कहा जाता है? पेरिस्टाइलिस मूवमेंट। पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट। पेरिस्टेलिस मूवमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टेलिसिस। पेरिस्टालसिस। Clear? At the opening of the stomach is the lower esophageal sphincter, right? This is a muscle valve that permits the passage of food, but not the backup of stomach contents under normal condition. जो नीचे की तरफ होता है वहां पे एक क्या होता है? एसोफेगल स्फिंक्टर कहा जाता है, जिसका काम क्या होता है? फूड जब नीचे तो आ जाएगा, स्टमक में एंटर तो कर जाएगा, लेकिन वो वापिस ऊपर नहीं जा सकता है। क्लियर हुआ? ये यहां पे आप लोगों को दिख रहा है, ये इमेज दिखा? यहां पे देखिए, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है ना, दोनों साइड से। ये क्या करता है? 4th नंबर जहां पे लिखा है, दिख रहा है? जी सर। ये आपस में क्लोज हो जाता है, और जो फूड नीचे जा चुका है ना, ये वापिस ऊपर नहीं आ सकता। क्लियर हुआ? चल आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं स्टमक। स्टमक का स्ट्रक्चर क्या होता है? द स्टमक इज अ मस्कुलर एक्सपेंडेबल ऑर्गन। किससे बना हुआ है? मांसपेशियों से बना हुआ है, और एक्सपेंडेबल है, एक्सपेंड हो सकता है। सबसे ऊपर का जो पोर्शन है, इसको क्या कहा जाता है? फंडस। एंड द लोअर पोर्शन कॉल्ड द एंट्रम। सबसे ऊपर फंडस एंड लोअर पोर्शन इज एट्रम। क्लियर? इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिस एंड पाइलोरिक। कौन कौन से 3 होते हैं? 3 कौन कौन से? कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। गुड। कार्डियक, फंडिस एंड पाइलोरिक, ये 3 भागों में बटा होता है स्टमक। ठीक है? नाउ called the atrium. Hydrochloric acid and other gastric juices convert the food into the। अब एक चीज बताइए, ध्यान रखिए, जो HCl का सिक्रिएशन होता है कहां होता है? इन द कार्डियक। कार्डियक। स्टमक में किस पार्ट में होता है? कार्डियक में। क्लियर हुआ? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो निकलता है, and other gastric juices convert the food to a semi liquid state called chyme। यहां पे फूड किस फॉर्म में आता है? काइम। तो यहां से जो कार्डियक के बाद फंडिक में जाएगा, फंडिक में किस फॉर्म में जाएगा? काइम के रूप में। ठीक है? स्टमक में किस फॉर्म में आएगा? कार्डियक। ये स्टमक आपको दिख रहा है पूरा, ये शेप है स्टमक का। ठीक है? इसका जो ऊपर वाला भाग है ना, जो जस्ट ऊपर से थोड़ा सा नीचे देखिए, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है ना, उसके नीचे ये वाला जो, ये 3 भागों में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? ये 3 भागों में डिवाइडेड है। जो स्टमक है ना आपका, 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? कार्डियक। ठीक है?
सबसे ऊपर वाला भाग है उसको कहते हैं कार्डियक, जहां पे HCl का सिक्रिएशन होता है। यहाँ पे फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और जितने भी विषाणु अगर एंटर हो गए खाने के साथ, मोस्टली कहां पे मर जाते हैं? कार्डियक वाले पार्ट में, कार्डियक में क्योंकि यहाँ पे HCl रिलीज होता है, HCl के हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ऐसा अम्ल है जो अगर आपके फिंगर्स के ऊपर पड़ जाए ना, तो वो आपके फिंगर्स को जला देगा पूरा। अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए, एक आंसर दीजिए, ये अगर स्टमक में रिलीज होता है तो स्टमक को क्यों नहीं जलाता है? म्यूकस लाइन म्यूकस लेयर होता है। लेयर। म्यूकोसा की एक लाइनिंग होती है, ठीक है ना? म्यूकोसा की एक लाइनिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है इनर बर्न होने से, जलने से। और यही सर वो लेयर जब डैमेज बेसिक बेस होती है। यस, वो बेस मतलब होता है बेस उसमें। तो एसिडिटिक और बेस जब आपस में ये एक दूसरे को रिएक्ट वहां पे नहीं करते हैं, मैनेज करते हैं। क्लियर हुआ? न्यूट्रल हो जाते सर। यस, यही अगर लेयर कई बार डैमेज होती है तो क्या होता है? HCl आपके स्किन को जला देता है, एंड दैट इज कॉल्ड अल्सर। उसको क्या कहते हैं? उसी को अल्सर कहा जाता है। क्लियर हुआ? यस या नो? जी सर, पेट में छाले पड़ जाते हैं उसके। यस, वो छाले इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि वहां पे HCl डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है? कई बार इसके लेयर में पूरी छेद हो जाती है आर पार, उसकी सर्जरी की जाती है। क्लियर है ना? क्योंकि अगर आप सोचिए कि होल हो गया तो वहां से HCl बाहर भी तो रिलीज होगा ना, और वो बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ? यस या नो? कार्डियक के बाद फूड कहां पे आएगा? फंडिस में। फंडस फंडिक और फंडस के बाद किस में आएगा? पायलोरिक में। पायरोलिक पायलोरिक। क्लियर हुआ कार्तिकेश्वर जी? ओम जी सर, ओम ओम। मेरे क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा हिंदी में कृपया ना थोड़ा सा बता दीजिए। इंग्लिश में ना तो मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा ध्यान नहीं है साइंस का मैं क्या। समझ गया। इसका नेम जो है ना शंकर जी, ये इंग्लिश में जी ही है, ठीक है? अच्छा। आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो वो कार्डियक, फंडिस और पायलोरिक ही है। ये क्या होता है सर? ध्यान नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। मैं बता देता हूं। जी जो हमारा आमाशय है ना, जी आमाशय को हाँ 3 भागों में विभाजित किया गया है, हाँ, ऐसा ठीक। जी 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 ठीक है? जो जी पहला भाग है उसको क्या कहते हैं? कार्डियक। जी आमाशय का जो सबसे ऊपरी भाग है ना, जहां जी पे जो आपका भोजन है जस्ट अंदर आ रहा है, एंटर कर रहा है, हाँ जी 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 आपके जो फूड पाइप है, जो भोजन नाल है, उससे, जी 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 ठीक है? तो जो पहला जी वाला भाग हुआ, पहला वाला भाग क्या हुआ? कार्डियक। कार्डियक जी कार्डियक में ही HCl निकलता है। HCl क्या है? एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं उसको। जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? वो जो आपने खाना खाया है ना, जी उसको बिल्कुल टुकड़ों में बांट देना, बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ों में, जी 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 और भोजन को वहां पे मिक्स कर दिया जाता है आपस में अच्छे तरीके से, अच्छा। जी 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 ठीक है? अब कई बार क्या हाँ होता है, भोजन के साथ कुछ विषाणु भी प्रवेश कर जाते हैं, जी तो उसका अंत भी यही कार्डियक में हो जाता है, अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है? जो वो अम्ल है ना, वो अम्ल के कारण वो जितने भी विषाणु होते हैं वो उसको नष्ट कर देता है। जी अब जब यहाँ ठीक पे है। जो आपका भोजन है अच्छी तरीके से मिल चुका है, तो ये अब अगले वाले भाग में आएगा आमाशय के, अच्छा उसको कहते हैं फंडिस। जी
अब भोजन आपका कुछ देर तक वहां पे रहेगा, जी ठीक है, वहां हाँ पे भोजन कुछ देर तक रहेगा और वहां और भी तोड़ने का काम चलेगा। अच्छा अब वो भोजन दूसरे से तीसरे भाग में आएगा, जो सबसे लास्ट भाग है हाँ जी पाइलोरिक में, जी ठीक है। एक चीज ध्यान हाँ रखिएगा, जी यहाँ पे पाचन का कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ तोड़ने का काम हो रहा है, अच्छा तोड़ने का और मिक्स करने का काम हो रहा है अमाशय में, जी 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 ठीक है। पाचन हाँ का और कार्य मोस्टली कहां पे होगा? पाचन का कार्य होगा छोटी आंत में, स्मॉल अच्छा इंटेस्टाइन, जी जो कि अमाशय से जस्ट कहां होता है? अमाशय से जस्ट नीचे। जस्ट नीचे जी और यहाँ पे आप छोटी आंत को देखेंगे, छोटी आंत जी को भी इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। अच्छा जी हम अमाशय को 3 भागों में डिवाइड किया, उसके छोटी बाद आंत छोटी आंत को भी इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया, जी 3 भागों में बांट दिया, जिसको जी इन्होंने कहा डेडुनम, इलियम और जेजुनम, जी ठीक है। डेडुनम, इलियम और जेजुनम, इन तीन तीन नाम दिए किसको? छोटी आंत को, छोटी आंत जी ठीक है। छोटी आंत को भी 3 भागों में डिवाइड किया, डेडुनम, जी इलियम और जेजुनम। जी और इसमें जो खाना, जो आपका भोजन है ना, इसमें जो प्रवेश जी करेगा, जो जी अमाशय में प्रवेश किया, अमाशय में किस फॉर्म में प्रवेश किया, उसको कहते हैं काइम, अच्छा उसको काइम कहते हैं। कायम ठीक है जी हाँ, और जो ऊपर जी से अमाशय में आया था बोलस, बोलस को हिंदी में लुगदी कहते हैं, अच्छा जी तो लुगदी के रूप में सर प्रवेश किया सर था। काइम हाँ, काइम किसको कहते हैं, फिर से एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। काइम देखिए, जो बोलस के फॉर्म में आया था ना स्टमक में, ठीक है, हाँ हाँ तो बोलस के फॉर्म में कहा एंटर किया उसने? स्टमक में, हाँ ठीक है। अब स्टमक से जो फॉर्म बनेगा फूड का, वो कौन सा फॉर्म बनेगा? काइम। कायम। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक और वो काइम के रूप में कहा एंटर करेगा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। क्लियर हो गया? चल, अब आगे देखें। अब हम छोटी आंत की फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब देखिए, छोटी आंत को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? सबसे पहले डेडुनम, जो कि कहां पे होता है? आपके अमाशय से जस्ट जुड़ा होता है, आपके स्टमक से जुड़ा होता है। उस भाग को क्या कहते हैं? ड्यूटोनम। सी लाइक स्ट्रक्चर होता है सर इसका। यस। उसके नीचे जब आएंगे सेंटर में मध्य वाला भाग जो होता है, उसको क्या कहते हैं? जेजुनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का जो लास्ट वाले जो भाग होते हैं, उसको क्या कहते हैं? इलियम। तो छोटी आंत के कितने भाग हो गए? 3, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। 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 अब अगर हम छोटी आंत की बात करें, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? अराउंड 21 फीट, अगर उसको बाहर निकालें। 21 फीट ठीक है अगर उसको लंबाई में आप बाहर खोलेंगे ना, तो वो 21 फीट के अराउंड लंबा होगा। और इसकी जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? 1 डायामीटर, 12 फीट ठीक है शंकर जी। हाँ ओके ओके जी जी एंड 21 और फ्रॉम द पाइलोरिक स्प्रिंटर, जो पाइलोरिक स्प्रिंटर हमने देखा था ना, वहां से वाल्व टू द लार्ज इंटेस्टाइन, कहां तक? बड़ी आंत तक इसकी लंबाई देखी जाती है। क्लियर हो गया? जी एंड द डेडोनम इज द फुट लॉन्ग सेक्शन जस्ट बियॉन्ड द स्टमक। डेडोनम कहां है? अमाशय के जस्ट पास में। एंड द जेजुनम इज द नेक्स्ट 8 फीट,
जेजुनम कहाँ पे है? ड्यूडेनम के 8 फीट बाद है जेजुनम। ड्यूडेनम के कितने फीट बाद है? 8 8 फीट बाद जेजुनम आता है। एंड द इलियम इज द रिमेनिंग 12 फीट, और बाकी जो 12 फीट बचा वो क्या है? इलियम। लियम। क्लियर हो गया? जी। चल, ये जो था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, छोटी आंत। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ज्यादातर जो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब किए जाते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो खनिज लवण जो पदार्थ होते हैं मोस्टली, उसका अवशोषण कहाँ किया जाता है? छोटी आंत में। बढ़िया। छोटी आंत में। न्यूट्रिशन छोटी आंत में होता है, ठीक है। जितने भी खनिज पदार्थ है ना, उसका अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में। छोटी आंत। बड़ी आंत सर में सिर्फ इसका एक्सेस अवशोषण होता है HCl सीक्रेट होने का रीजन क्या होता है? HCl। हेलो। अगर एक्सेस HCl सीक्रेट हो रहा है ना, ठीक है, हम्म बाकी म्यूट कर लें तो थोड़ा सा हम्म आवाज बेहतर होगा, है ना। ये होता है मोस्टली क्यों? अगर मान के चलिए आपने खाना ज्यादा खा लिया, क्या होगा? HCl बहुत ज्यादा चाहिए, नहीं चाहिए उसको तोड़ने के लिए? हम्म ज्यादा एचसीएल बनेगा। ज्यादा HCl, ठीक है। और आपने खाना ऑलरेडी भर लिया है किसमें? स्टमक में। कार्डियक में। कार्डियक में जा रहा है ना, सबसे पहले भोजन कहाँ गया है? कार्डियक भाग में। जी और सर। अगर वहां पे आपने ऑलरेडी भोजन को भर दिया, तो प्रोसेस जो टूटने का है उसको जगह भी तो चाहिए ना। वहां पे क्या होगा? गैसेस बनना शुरू हो जाएंगी। क्लियर हुआ? ज्यादा जी सर। भोजन को तोड़ने के लिए ज्यादा HCl चाहिए होगा। समझ आया? अगर आपने जी। प्रोटीन, ठीक है, अगर आपने प्रोटीन या तो आप मान के चलिए आपने सेचुरेटेड फैट ले लिया। आप सोचिए सेचुरेटेड फैट को पचाने के लिए आपके स्टमक को, आमाशय को अधिक मात्रा में HCl निकालना पड़ेगा, क्योंकि तोड़ना कठिन होता है ना। प्रोटीन जो होते हैं आपको पता है ना, प्रोटीन अलग अलग टाइप के हमने पढ़े थे, याद है? जी सर। जी सर। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनको तोड़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो उससे उसके लिए क्या होगा? HCl बहुत ज्यादा निकालेगा। समझ आ गया? सर फिर एम्प्टी स्टमक में क्यों होता? हम वो भी बता देता हूं। HCl का फॉर्मेशन तो होता ही रहता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप खाना नहीं खाएंगे तो HCl नहीं निकलेगा। यस या नो? यस। HCl का सिक्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। आपको भूख एक दाना भी अगर चला जाता है तो ना, सर सिक्रेशन होने लगता है। ऐसे ही भूख लगने लगता है, HCl का सिक्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? भूख लगते के साथ ही जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, उसका सिक्रिएशन स्टार्ट हो जाता है, वो निकलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर आपने फूड वहां नहीं डाला तो क्या होगा? एसिडिटी गैस में क्या बन होगा? जाएगी। एसिडिटी हो एसिडिटी जाते हैं। प्रॉब्लम। अगर खाना है तो खाने के साथ वो मिक्स होता है, और पेट खाली है तो फिर या पेट में जलन पैदा करते हैं। समझ आ गया? और वो हो सकता है ऊपर की तरफ भी बढ़े, और वहां पे आपको चेस्ट बर्निंग भी फील होगा, छाती में जलन। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। कई बार इसी को एसिड रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। समझ आया? जब वो एसिड कहां पे बढ़ता है? ऊपर की तरफ। कार्डियक पोर्शन की तरफ। यस।
कार्डियक में वो ऑलरेडी है एसोफेगस की तरफ। समझ आया? कार्डियक में तो वो ऑलरेडी है ना, कार्डियक में ही तो निकल रहा है। जी सर। क्लियर हो गया यहां तक? हाँ सर। चल, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन देख लेते हैं, क्या काम होता है, राइट। और लीवर का क्या काम होता है। जो गुर्दे हैं आपके, गुर्दे क्या होते हैं, लीवर। गुर्दे ही कहते हैं ना लीवर को। सर गुर्दा किडनी को बोलते हैं नहीं, ना? यकृत गुर्दा बोलते हैं किडनी को सर। यकृत, हाँ ठीक है, लीवर को यकृत लीवर यकृत बोलते को हैं। यकृत। कहते हैं। गुर्दे ठीक, को ये गुर्दे किडनी। किडनी को कहते हैं, ठीक है। यकृत लीवर जो है, ठीक है। यकृत लीवर। द लीवर जिगर प्राइमरी भी इसी को बोलते हैं ना सर? जिगर उर्दू वर्ड है, ठीक है। जिगर अलग चीज है। वो उर्दू में इसको मोस्टली लीवर के लिए यूज कर देते हैं। द लीवर्स प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू डाइजेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ वाइल। सबसे पहला काम क्या है लीवर का, यकृत का, वाइल जूस निकालना, बाइल जूस। राइट। और गॉल ब्लैडर जो इसके साथ होता है, ठीक है, विच ड्रेन्स इनटू द ड्यूडोनम। कहाँ मिक्स होता है, ड्यूडेनम। ड्यूडोनम में। जो सबसे पहला भाग है किसका, छोटी आंत का। छोटी। एंड सम इन स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और कुछ जो होते हैं, थोड़ा बहुत तो मान के चले रिलीज कर दिया गया जितनी जरूरत थी, और बाकी कहाँ स्टोर हो जाएगा, पित्ताशय की थैली में, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर उसको क्या कहते हैं, पित्ताशय। हिंदी में उसको पित्ताशय कहते हैं। ये स्टोर हो जाएगा पित्ताशय में। ट्रैवल थ्रू द हेप्टिक डक्ट। किसके द्वारा ट्रैवल करता है ये, किसके द्वारा जाता है, हेप्टिक हेप्टिक डक्ट डक्ट। होते हैं। डक्ट। बीच मर्ज टुगेदर, जो किसके साथ मर्ज होता है, ड्यूडोनम के साथ और यकृत के साथ और लीवर के साथ। बाइल हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स। बाइल का काम क्या है, बाइल जूस का काम क्या है, ये फैट को फैट को डाइजेस्ट, बसा को तोड़ने में मदद करता है। द लीवर ऑल्सो स्टोर्स आयरन। जो यकृत है वो किसको, आयरन, लोहा को भी स्टोर करके रखता है, अपने अंदर रखता है, अपने पास रखता है। एंड दैट फैट सॉल्युबल विटामिन, कौन कौन से थे, कीड़ा। कीड़ा। क्लियर, KEDA। KEDA, डी ये सभी कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर में। लीवर में। लीवर में। क्लियर हो गया यहां तक, बढ़िया। चलिए आगे देखें। द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। बाइल स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। बाइल कहाँ स्टोर होता है, कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में। becomes more concentrated, increasing its potency and intensifying its effect when the chyme contains fat, right। जो काइम होता है, काइम में क्या होता है, फैट भी होता है ना, साथ में बसा भी आता है, leaves the stomach, the gallbladder contracts and discharge while through the cystic duct। उस समय जैसे ही वो स्टमक में आता है, उसके बाद जैसे ही स्टमक से लीव करता है, स्टमक से कहाँ आता है, अमाशय से छोटी आंत में जैसे ही एंटर करता है, वैसे ही क्या करता है, पित्ताशय कॉन्ट्रैक्ट होता है और डिस्चार्ज कर देता है, छोड़ देता है किसको, बाइल को। कहां पे, सिस्टिक डक्ट के थ्रू, जो पाइप होता है, सिस्टिक पाइप होता है, उसके थ्रू छोड़ देता है कहां, कॉमन बाइल डक्ट एंड इनटू द ड्यूडोनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के ड्यूडोनम में छोड़ देता है। क्लियर हुआ, ये डक्ट जी दिख सर। रही है लीवर की, है ना, हेप्टिक डक्ट एंड कॉमन हेप्टिक डक्ट, कॉमन डक्ट, ये कहां एंटर कर रही है, छोटी आंत में एंटर कर रही है।
ये दिख रहा है इमेज में सभी को? जी सर। दिख रहा क्लियर है। हो गया? जी सर। चल, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और पेनक्रियास, ठीक है? पेनक्रियास, पेनक्रियास को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय, ठीक है। पेनक्रियास मीन्स अग्नाशय। द एक तो छोटी आंत हो गया, और जो अग्नाशय है उसका काम क्या होता है छोटी आंत के पास? द पेनक्रियास सीक्रेट्स द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास क्या करता है? पित्ताशय क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है? तो कहाँ से निकलता है? अमाशय से, पेनक्रियास से। पेनक्रियास से। इनटू द ड्यूडेनम, कहाँ पे निकालता है ये? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कहाँ स्थित है? छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला भाग, राइट? विच मर्ज विद द जी सर। कॉमन बाइल डक्ट, किसके साथ मर्ज होता है, किसके साथ मिला होता है? जो बाइल डक्ट हमने देखा था, जो बाइल को निकालने वाली जो पाइप थी। दिस पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो ये पेनक्रियाटिक जूस निकला है वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव, पाचन एंजाइम्स जो होती हैं, एंड बाई कार्बोनेट आयंस, जो कार्बोनेट आयंस होते हैं ये इसमें मिक्स होते हैं। इट्स रोल इज द वाइटल टू डाइजेशन, इसका जो रोल होता है डाइजेशन में, दैट अ पर्सन वुड स्टे विदाउट इट इवन इफ दे वेयर कंज्यूमिंग एन एडुकेट अमाउंट ऑफ फूड। अगर ये ज्यादा अमाउंट में फूड ले लेते हैं तो पेनक्रियाटिक जूस काफी मात्रा में निकलना शुरू होता है। क्लियर? द स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम एंड इलियम। सेकेंड और दूसरा और तीसरा भाग हम देख लेते हैं क्या होता है यहाँ। द जेजुनम एंड इलियम आर लाइंड विद द हेयर लाइक प्रोट्रूशंस कॉल्ड विली। यहाँ पे क्या होता है इलियम और जेजुनम में? एक अवशोषण। विली, यही अवशोषण होता है। हाँ, विली होते हैं। विली क्या होते हैं? विली से। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, लाइक हेयर होती है ना जैसी, वैसे ही ये होते हैं। जी सर। दे स्लो द पासेज ऑफ फूड, ये जो फूड आगे बढ़ रहा है ना इसके प्रोसेस को क्या करते हैं? थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। एंड अलाउ फूड पार्टिकल्स टू बी कैप्चर्ड इन अमंग दिस फिंगर लाइक विली। ठीक है? ये क्या करते हैं? फूड को रोक देते हैं। क्यों? क्यों रोकते हैं, कोई बताएंगे? क्योंकि एब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन होता है या, यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह और फैट्स का। बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर फास्ट मोड में जाएगा, तेजी से जाएगा, तो ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे ना, है ना? न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कैसे करेंगे जब इनको समय ही नहीं मिलेगा? तो इसीलिए यहाँ पे जो भोजन आगे जा रहा था काइम के फॉर्म में, यहाँ पे थोड़ा स्लो कर देते हैं ये, सो दैट द ब्लड इनसाइड, जो विली के अंदर ब्लड है, ये क्या करते हैं? ब्लड, कैन ब्लड एब्जॉर्ब द कैपिलरी न्यूट्रिएंट्स जो इन द रहते हैं। फूड। हाँ, जो ब्लड कैपिलरीज है वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो तत्व जरूरी है वो क्या कर लेते हैं? भोजन से निकाल लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। एंड विलस कैपिलरीज कलेक्ट अमीनो एसिड, जो विलस कैपिलरीज होते हैं वो क्या करते हैं? अमीनो वॉइस एसिड। ब्रेक हो रही है सर। ज्यादा हो रही है? अभी ठीक है सभी सर। को हो रही है? ठीक है। तो विलस जो कैपिलरीज होती है वो क्या करती हैं? कलेक्ट अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल जो होती है, प्रोटीन एंड ग्लूकोज, सिंपल शुगर्स, राइट, इसको ऑब्जर्व कर लेती है, रख लेती है। एंड विलस लैक्टेलियस कलेक्ट एब्जॉर्ब फैटी एसिड, जो फैटी एसिड है, ठीक है, वसा जो अम्ल है, वसीय अम्ल कहते हैं इसको, फैटी एसिड, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? विलस लैक्टियल्स, विलस लैक्टियल्स, ठीक है। और प्रोटीन और सिंपल शुगर्स को कौन करता है? विलस कैपिलरीज।
क्लियर हो गया? यस या नो? सर एक बार रिपीट कीजिएगा तो ये। हाँ, जो लाइक प्रोटीन्स है ना, अमीनो एसिड और ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? दैट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर का सबसे सिंपल फॉर्म है वो, साधारण जो वो है, ठीक है, फॉर्म है। इसको किसके द्वारा जी सर। एब्जॉर्ब किया जाता है? किस कैपिलरीज के द्वारा? विलस कैपिलरीज के द्वारा। विली था ना, विली से यस विलस, सर। विलस। ठीक है। और क्योंकि वहां पे फैटी एसिड भी है, तो फैटी एसिड को कौन एब्जॉर्ब करेगा? बसी अम्ल को, विलस लैक्टियल्स। कैपिलस। ये कौन करेगा? विलस लैक्टियल्स। लैक्टियस। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। The small intestine and the large intestine. The function of the large intestine or wall is to absorb the remaining water. जो बड़ी आंत का काम क्या है? बड़े जो फूड है, जो लाइक वाटर बच गया था ना, वाटर एब्जॉर्ब कहाँ नहीं होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है। कहाँ होता है मोस्टली? लार्ज बड़ी इंटेस्टाइन। आंत में, लार्ज में। लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स फॉर्म, जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर से बचे आ गए हैं ना, इनडाइजेस्टेड फूड मैटर, ठीक है, जो जिसका पाचन, जो इसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हुआ है, जो फूड के थ्रू कहाँ आ गए हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां पे ये एब्जॉर्ब होंगे। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग बेसिकली बताए गए हैं, 4 भागों में उसको लिया गया है, ठीक है। कौन कौन से? सबसे ऊपर पहले जो है वो ट्रांसवर्स क्लोन, ट्रांसवर्स। फिर असेंडिंग क्लोन, फिर डिसेंडिंग क्लोन, और लास्ट में सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड क्लोन। कुछ कह रहे हैं पुंडलिक जी? हाँ जी, असेंडिंग होगा ना पहले? हाँ जी, पहले सर असेंडिंग पहले होगा। असेंडिंग कॉलन आएगा। हाँ, पहले असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। क्लियर हो गया? ये कई बार पूछा जाता है कि कौन सा बड़ी आंत का भाग है, ये ऑप्शन दिया जा सकता है। क्लियर हो गया? सीकम इज द ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड सिग्मो, जो सबसे नीचे है, दैट इज द एनस क्लोन, राइट, जो एनस है सबसे नीचे। डन। और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी कहाँ आते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड देन दे एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और लार्ज इंटेस्टाइन से ही एनएस के थ्रू बाहर निकाला जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज सब डिवाइडेड इनटू द सेकम एंड द, सबसे पहले सेकम आएगा, ठीक है पुंडलिक जी, सबसे जी पहले सर। सेकम, इलियम का लास्ट पार्ट सीकम में जाके मिलता है, फिर और इलियम इसमें के बाद बड़ी सेकम आ आंत में, जाता है। हाँ, बड़ी आंत में जो सेकम, ये काइम है, वो कॉलन बन जाता है। यस, दोनों को जोड़ने वाला होता है ना, छोटी हाथ और बड़ी हाथ को, हाँ, बीच वाला। सीकम जो है वो दोनों को जोड़ रहा है। सर इसे सीकम को ही अपेंडिक्स बोलते हैं क्या? अपेंडिक्स उसके appendix जस्ट ये जो बगल में साइड होता में है। जो पार्ट है, हाँ, छोटा ये सा देखिए, जो ये पार्ट है दिखा, वो है। ये दिखा, ये छोटा सा, ये अपेंडिक्स है। इसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, जो अच्छे बैक्टीरिया बच के आ गए हैं यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये कहाँ स्टोर होंगे? यहाँ ये पे, इसमें, ठीक है। सिकम में। नहीं, नहीं, इसमें रेक्टम, नॉट रेक्टम, इसको रेक्टम सॉरी, क्या बोल, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। हाँ, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स, हाँ, यस, अपेंडिक्स में। वो स्टोर होते हैं अपेंडिक्स में, ठीक है। अपेंडिक्स का काम ये है कि वो गुड बैक्टीरिया को स्टोर करने का काम करता है। स्टोर करते क्लियर है? चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ गए? डॉक्टर्स आर सेइंग कि ये बिल्कुल वेस्ट है, जबकि वेस्ट हैं। हाँ, नहीं है ये, नहीं वेस्ट नहीं है सर ये। ठीक है, इसका ऑपरेशन क्योंकि करने के बाद मतलब ये कहा जाता है तुरंत कि वो इसका रिमूव कोई कर इतनी देते हैं। जरूरत नहीं है। हाँ, दे रिमूव दैट डायरेक्टली, राइट,
वो कहते हैं कि इसको रिमूव करने के बाद, लेकिन दैट इज द नेचुरल ना, आपको पता है कि नेचुरल। नेचर ने बॉडी में कोई भी चीज वेस्ट नहीं बनाया है, ठीक है ना। सो देयर इज ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट वर्क, और आपको पता है अपेंडिक्स की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हाँ, दर्द होता है बहुत ज्यादा ठीक है। appendix में। और अगर ये वर्क ना कर रहा हो ना, तब भी कई बार प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। क्लियर है? कि कभी मैं इसकी बताऊंगा ना तो प्रॉपर इसी का बताऊंगा कि किस तरीके से अपेंडिक्स काम करता है, हाँ सर, मैंने इसका पढ़ा था, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जबकि ठीक कई है। बोलते हैं कि कई इसकी बार कोई जब हम जरूरत नहीं होती। या एक्यूप्रेशर में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो कई बार जो इसकी एनर्जी है ना बहुत काम करता है। मोस्ट ऑफ थिंग्स में अपेंडिक्स पे वर्क किया जाता है। क्लियर है ना? तो क्लियर हो गया, सीकम, असेंडिंग, ठीक है। ट्रांसवर्स, जो डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड क्लोन। अगर सीक्वेंस में आ जाएगा तो लगा देंगे, जी सर। ठीक है। यस सर। द लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली अबाउट 4 से 5 फीट। नाम इसका लार्ज है, बड़ी है, लेकिन है ये स्मॉल, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन से, सिर्फ ये आउटर कवर करता है। ये और स्मॉल, लंबाई में छोटा है, लेकिन मोटाई यस, में ज्यादा है। मोटाई में इंचेस में ज्यादा है, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितनी होती है? अराउंड 2.5 इंचेस, ठीक है, 2.5। क्लियर हो गया? कंप्लीट कर लेते हैं इसको। द रेक्टम एंड एनस। द रेक्टम इज वेयर फीसेस आर स्टोर्ड अंटिल दे लीव द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब तक ये पाचन तंत्र से बाहर नहीं निकल जाते तब तक फीसेस जो होती है, मल है, वो कहाँ इकट्ठा होता है? रेक्टम में। क्लियर? थ्रू द एनस एज अ वॉल मूवमेंट। अब बाहर कैसे निकलता है? एनस के थ्रू बाहर निकलता है। एज द रेक्टल वॉल्स एक्सपेंड विद द वेस्ट मटेरियल, रिसेप्टर्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द डिजायर ऑफ डिफिकेट। अब तो यहाँ पे कुछ मसल्स ऐसी होती है ना जो कहां से कट करे कंट्रोल होती है? डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से। जैसे ही वो ऑलरेडी फुल हो जाता है तो वहां से स्टिमुलेशन क्रिएट किया जाता है टू एक्सक्रिएट द आउटसाइड फॉर द डिफेक्शन और इजेशन वी consequently relax the external anal sphincter muscles to expel the waste to the anus। वहां से ओपन होता है और क्या करता है? जो फीसेस होते हैं उसको आउट कर देता है। आफ्टर दैट दे अगेन क्लोज, वो दोबारा रिसेप्टर्स के थ्रू बंद हो इसीलिए जाता इसीलिए सर बड़ी आंत को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। है। यस, क्योंकि वहां नर्वस सिस्टम डायरेक्टली वर्क कर रहा होता है। क्लियर है ना? यस या नो? जी जी सर। सर। उर्मिला मैम क्या बोले आपने? सेकंड ब्रेन किसका? कहा जाता है बड़ी आंत को। सेकंड ब्रेन कहा जाता हाँ, है बड़ी आंत को। और इसीलिए स्पाइनल कहते कॉर्ड हैं को भी कहा कि जाता हाँ, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को भी आता है कहा ना जाता वहां से। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड को भी कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड तो सेकंड ब्रेन मोस्टली है ही, ठीक है। 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 वही वही तो फिर उसको कैसे? हाँ, लेकिन अगर अगर ये ऑप्शन में ना हो ना, बढ़िया, तो मेन है जो स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपरिधीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों मेन पार्ट हैं उसके, इसीलिए। क्लियर हो गया यहां तक? सभी को समझ आया किस तरीके से काम करता है, कहाँ क्या होता है? यस या नो? कोई सवाल इससे रिलेटेड? कोई क्वेश्चन? क्लियर है। चलिए, मैंने कोशिश किया है हिंदी में एक्सप्लेन करने का, ठीक है, क्योंकि मेरी खुद की हिंदी इतनी नहीं गई है, तो कई चीज़ों के नाम थोड़ा सा, ठीक है। बट अच्छा है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज गुड, है ना। आप लोगों को जैसे जिनको याद है वो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। चलिए, कुछ तो आप लोगों में ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी पीएचडी होल्डर्स हैं इसमें,
तो आप लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा ये चीजें। ठीक है ना? सर मैंने इसका नोट्स बनाए हुए थे, इसके लिए थोड़ा ये था। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये चीजें एक बार में समझ आ जाती हैं, जैसे बार बार इसको अगर आप पढ़े ना तो फिर आपको जरूरत ही नहीं होती, आप खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। हाँ जी। ठीक है? और सिंपल वे में आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है। ठीक है? तो जैसे ही कोई डिजीज होती है तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम यहाँ हो रही है ना? फिर आप सामने वाले को भी कई बार बता देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ रही है स्टमक में या तो डाइजेशन में। हमारे को अगर अंदर का स्ट्रक्चर मालूम है तो हम खुद ध्यान लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ ये चीज है यस, इसकी। इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं ना योग में, नहीं तो पढ़ने का और क्या इसलिए रीजन है? एनाटॉमी को जानना बहुत जरूरी होता है, हमारे को हर पार्ट का मतलब कहाँ ये चीज है उस चीज का मालूम पड़ना चाहिए। और जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारे को पता है कि पैनक्रेज कहाँ जैसे आमाशय कहाँ जैसे है, बिल्कुल। ड्यूडेनम कहाँ, तो वो चीज का हमारे को मालूम पड़ता है कि योगाभ्यास से यहाँ असर पड़ रहा है उसका, तो हम इजीली उनको उनका इसीलिए कहा गया था कि बता यौगिक सकते हैं। में एनाटॉमी का सिद्धांत सबसे ज्यादा जरूरी है, शरीर क्रिया विज्ञान सिद्धांत, है ना? क्योंकि इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी तरीके से कार्य कर पाए शरीर के ऊपर। हमारा लीवर कौन सी साइड है, पैनक्रेज कौन सी साइड है, हम जब मत्स्य और किस का लिए आसन करते रिलेटेड है, हैं। किस हाँ लिए रिलेटेड है। अगर शरीर में हाँ, प्रॉब्लम हुई तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि अच्छा मेरे लीवर से प्रॉब्लम हो रही मीन हम है दोनों ना? साइड जब हम बैंड करते हैं तो हमारे पैनक्रेज ये में भी असर पड़ता है, पैनक्रेज में और लीवर में भी, तो हम बिल्कुल। दोनों का इसका फायदा बता सकते हैं।